Hello friends, this is Mainak from Civil Center and I welcome all of you to the 10th episode of CKDKMK, that is Civil के दुनिया के मजेदार किस्से. So friends, today we have with us engineer Bitan Ghosh. So to give a brief introduction of his educational background, engineer Bitan Ghosh completed his BTech in Civil Engineering in the year 2014 from KIIT University. He has also done Masters in Business Administration from Indian Institute of Foreign Trade. He also holds diplomas in Project Management and Strategic Management from International Business Management Institute (IBMI). He has also done a course on Digital Transformation from Massachusetts Institute of Technology. So now let us move towards his work experience. After doing his BTech in Civil Engineering in the year 2014, he got placed in Delim Industrial as a civil engineer. After that, in the year 2015, he joined Ganges Valley Constructions Private Limited as a project engineer. He has also experience as an executive director in Sembo Engineering Limited from the year 2016 to 2017. And currently, he is the director of RK Group of Companies, director of Orpheus Healthcare Private Limited, co-founder and CEO of Orpheus Technologies Private Limited, founder of Next & Co, and co-founder and managing director of Usin Technologies. So friends, let's welcome engineer Bitan Ghosh. So Bitan sir, it's a pleasure to have you on our show. Same here, Mainak. Thank you for having me. It's a pleasure. It's a pleasure, sir. On behalf of the viewers, I want to thank you again for coming here and sharing your experience. We can start with how's been your experience of starting your professional life after BTech. Starting, you had gone for job, and how was your experience? Let's start from there. It was a wonderful experience. I was very much fortunate enough. I got placed in a company which posted me in a country like Kuwait. I was there for 18 months. Then I shifted to Seoul, Korea for 6 months. And after that, I came back to India to complete my MBA. So, वो जो 2 साल का मेरा experience रहा है, it was phenomenal. I got chance to work in live oil and gas projects. I got chance to work in power plant projects. It was a different experience altogether. Unfortunately, मेरे जो managers थे, मेरे जो colleagues थे, they were very much supportive. Like मेरे colleagues were like 20 years older than me, but they supported me like anything. They used to treat me like a young brother. They taught me everything. I was just a fresher, तो obviously मुझे उतना कुछ पता नहीं था साइड में कैसे काम होता है. But वो लोग एकदम मतलब हाथ पकड़ के सिखाने वाले ऐसे लोग थे. So I was very lucky to have them as my colleagues. तो उस समय जब आप बीटेक कर रहे थे, तब उसमें प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो था? मतलब जब आप फोर्थ ईयर में तब आप क्या सोचते थे, क्या करना है मुझे? मतलब कुछ लोग जैसे कि गेट का तैयारी करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं जॉब में जाएंगे, कुछ लोग हायर स्टडीज करेंगे, तो मतलब सब लोग थोड़ा कंफ्यूजन का माहौल रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है. तो आप क्या सोच रहे थे उस समय जब फाइनल ईयर बीटेक में? फाइनल ईयर में मैं कुछ ज्यादा सोच नहीं रहा था, cause I did not want to do MTech, cause I belong to a family of entrepreneurs. So मेरे पापा, मेरे माँ सब पे entrepreneurs है अपने फील्ड में. So I was not at all interested in working for a company or rather going for higher studies in MTech. Technical studies में जाने का एकदम मन नहीं था. So I always wanted to do MBA. तो फोर्थ ईयर में मैंने CAT के लिए अप्लाई किया था. Unfortunately कुछ खास मार्क्स आए नहीं थे. 83% आया था, तो 83 में तुमको भी पता है कुछ ज्यादा खास वो है नहीं स्कोर, तो अच्छे कॉलेजेस मिलने का चांस नहीं था. सो उसके और उस टाइम अगर तुम देखो प्लेसमेंट के लिए तो मैक्सिमम प्लेसमेंट्स हो रहे थे तुम्हारा कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब फील्ड में. सिविल में ज्यादा कुछ स्कोप था नहीं और मैं कुछ अच्छा स्टूडेंट भी नहीं रहा था. आई वाज जस्ट 7.14 पॉइंटर. तो कंपनीज लाइक शाहपुर एंड ऑल डिड नॉट इवन अलाउ मी टू सिट डाउन इन प्लेसमेंट्स. सो I used regretted at that time कि क्यों मैंने पढ़ाई नहीं किया था ज्यादा. लेकिन अभी आके मुझे समझ में आ रहा था कि ठीक है, क्योंकि अगर मुझे प्लेसमेंट्स मिल जाता तो I would not have wanted to, मैं डेलिम जैसे कंपनी में बैठने के लिए मोटिवेट होता नहीं. So that was a boon for me. और रही बात सिविल प्लेसमेंट्स की, तो उस साल शुरुआत में 2-3 कोर कंपनीज आई थी.
फिर हम लोगों को कहा गया था कि आप प्रिपेयर कीजिए आईटी कंपनीज में बैठने के लिए, विच मी एंड माय ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वर नॉट ऑल इंटरेस्टेड इन। सो हम लोग वेट किए थे एंड तक कि कुछ कोर कंपनीज आ जाए, हम लोग उसमें बैठ सकते हैं। तो आशियाना एंड ऑल दे केम अराउंड मार्च एंड, मतलब फाइनल एंड सेम से पहले। सो मेरे दोस्त लोगों का प्लेसमेंट उसमें हुआ, लेकिन उस टाइम मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था दिल्ली में। आई हैड क्लियर्ड ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज, तो एक सुकून सा था कि हाँ सेकेंड राउंड में होने का चांसेस है। सो एट द एंड ऑफ द ईयर वी ऑल गॉट प्लेस्ड। अच्छा रहा प्लेसमेंट उस टाइम, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं सबको प्लेसमेंट हो गया था। कोर में, आईटी में कोई गया नहीं था। सो इन दैट वे इट वाज गुड। वहाँ पे जब आपके मतलब कंपनी आया, जो जैसे कि आपने बोला दिल्ली में, तो वहाँ पे किस टाइप के मतलब क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब क्या देखा गया था बेसिकली, नॉलेज या एटीट्यूड? दिल्ली में फर्स्ट राउंड में था मेरा टेक्निकल राउंड। ओके। तो टेक्निकल राउंड में दे आस्क्ड मी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो ऑलरेडी मेरे पास एमएस प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेशन था, प्राइमेवेरा का सर्टिफिकेशन था। आई वाज अ प्रिंस 2 सर्टिफाइड कैंडिडेट। उसके साथ साथ मेरा जो इंटर्नशिप था, सेकेंड ईयर में मैंने इंटर्नशिप किया था शाहपुर जी कॉलेज में, और थर्ड ईयर के एंड में मैंने इंटर्नशिप किया था तुम्हारा वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। सो ऑलरेडी मेरा कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज था। सो दैट वाज अ एडेड थिंग। So the certifications, the internships, that helped me a lot. तो आपने जो कोर्सेज किए थे, सर्टिफिकेशन किए थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, वो बहुत हेल्प किया आपको, मतलब जब प्लेसमेंट का टाइम आया। तो उसके बाद आपने जॉब किया वहाँ पे लगभग 2 इयर्स का। तो फिर yes. तो फिर आपका जो मतलब बोल रहे हैं कि बेसिक जो फैमिली का बैकग्राउंड है कि एज एन एंटरप्रेन्योर, तब वो एंटरप्रेन्योरशिप आपने स्टार्ट किया, तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताएंगे? तो I came back to India 2016 में। 16 अप्रैल में वापस आया। आने के बाद I did not want, मैंने फैमिली बिजनेस में तुरंत जाने का मन नहीं था, क्योंकि और थोड़ा एक्सपीरियंस गैदर करना था। सो एक हम लोगों की इधर कंपनी है सेनबो इंजीनियरिंग। सो I applied over there so that I had a conversation with their MD। तो वो मुझे एक चांस दिया कि ओवरसीज बिजनेस डेवलपमेंट संभालने का, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस था तुम्हारा कुवैत में, सियोल में। सो ओवरऑल और उन लोगों को भी कोलैबोरेशन चाहिए था जापानीज के साथ, क्योंकि यहाँ लोग मेट्रो प्रोजेक्ट्स में बिड करने चाहते थे। सो वो कोलैबोरेशन में मुझे मौका मिला। आई वर्क विद देम। दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का थोड़ा मौका मिला। फिर मेरा IIFT में चांस मिल गया, तो मैं MBA करने के लिए चला गया। सो वो जो बीच में मुझे 6-7 महीने का टाइम मिला था, सो दैट हेल्प मी अ लॉट। क्योंकि मैनेजमेंट में जाने के बाद, जैसे तुम्हारा MBA के टाइम बहुत सारे फंडामेंटल्स रहते हैं जो तुम्हारा रियल लाइफ सिचुएशन के साथ तुमको कोरिलेट करना होता है। तो ये जो पीरियड था मेरा, एक हो गया कुवैत में, एक हो गया सियोल में, और दूसरा हो गया तुम्हारा दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट में मैनेजमेंट लोग के साथ। तो दीज 3 एक्सपीरियंसेस हेल्प मी अ लॉट। तो देन उसके बाद जब मैं पास आउट किया, पास आउट होने के बाद भी फाइनल ईयर में आई फाउंडेड 2 स्टार्टअप्स। तो उसमें एक स्टार्टअप है ऑर्फियस टेक्नोलॉजीज, जिसके साथ मैं अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में। और दूसरा जो स्टार्टअप है उसमें वो IT स्टार्टअप है, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ तुम्हारा फाइनेंशियल सर्विसेज में। और तीसरा जो है वो मेरा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म है, जिसके थ्रू मैं AECOM के साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट के हिसाब से काम कर रहा हूँ। अभी जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो गया, नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गया उसमें। और उसके साथ साथ मैं स्टार्टअप्स को स्टार्टअप कंसल्टेंसी में काम कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे बडिंग स्टार्टअप्स है जिनको थोड़ा हेल्प चाहिए होता है कि पहले बूटस्ट्रैप कैसे करना होता है, कैसे तुम्हारा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया जाता है। तो ये सब जगह में मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लगा आपका बात सुन के, इतना सारा चीज आप कर चुके हैं इतने कम एज में, बहुत ही मतलब अप्रिशिएट करने का चीज है। एंड वी आर लकी दैट वी हैव यू टुडे विद अस। तो आपका जो पहला जो स्टार्टअप था ऑर्फियस टेक्नोलॉजीज, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ वर्क कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या क्या चीज में अभी डील कर रही है? सो ऑर्फियस टेक्नोलॉजीज
के थ्रू हम लोग छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में तुम्हारा पूरा स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं डेटा लॉगर्स के साथ, ताकि हम लोग को पता चले कि हर एक इंडस्ट्री से कितना पोल्यूशन एमिशंस हो रहा है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट आया था 2016 एंड में, रायपुर वाज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो हम लोगों का पीएम का एक विजन था कि ये जो मैसेज है जो जा रहा है पूरी दुनिया को, ये बदलना है। तो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो हम लोग जो स्टार्टअप है, तो वी अप्लाइड फॉर दिस थिंक टैंक प्रोजेक्ट। ये बेसिकली तुम्हारा पीएमओ का एक पायलट प्रोजेक्ट है जो हम लोग कर रहे हैं अभी फाइनल फेज में है। पहले हम लोग 142 इंडस्ट्रीज को कनेक्ट किए थे, अभी धीरे धीरे 2000 इंडस्ट्रीज को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं पूरा स्टेट में, और सेम प्रोजेक्ट को पूरा डिप्लीकेट होगा तुम्हारा ऑल इंडिया। अच्छा, आप स्टार्टअप में कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए आपको पहला चीज जो रिक्वायरमेंट होती है एक स्ट्रॉन्ग टीम। तो क्या क्या चैलेंजेस था आपका? जो टीम है वो टीम कलेक्ट करना एंड उस टीम को मोटिवेटेड रखना और काम करवाना, तो उसके बारे में थोड़ा। सबसे बड़ा चैलेंज था कि आई वाज इन माय फाइनल ईयर ऑफ एमबीए। तो एक तो हो गया पढ़ाई, दूसरा हो गया कंपनी चलाना। तो दोनों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। सो बट फॉर्चुनेटली मेरे फादर बहुत मोटिवेट किए मुझे। उनके जो बिजनेस पार्टनर्स है सबको मुझे मोटिवेट किया कि ये हो सकता है। फिर धीरे धीरे जब टीम बिल्डअप हुआ, आई गॉट हेल्प फ्रॉम माय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एज वेल कि कैसे तुमको पूरा प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हो। फिर गवर्नमेंट में जाके, क्योंकि एक गवर्नमेंट एक स्टार्टअप को बस फेस वैल्यू में तो काम नहीं दे सकता। सो यू नीड अ स्ट्रांग टीम, यू नीड अ प्रॉपर प्लान, यू नीड प्रॉपर टेक्निकल कोलैबोरेशंस। सो हम लोग कुछ कंपनीज के साथ कोलैबोरेट किए, जहाँ से हम लोग टेक्निकल नॉलेज शेयरिंग में गए, पार्टनरशिप्स में गए। फिर धीरे धीरे तुम्हारा बहुत सारे कॉलेजेस से रिक्रूटमेंट चालू किए। अभी फॉर्चुनेटली द स्टार्टअप इज अराउंड 2.5 years old और we have a team size of around 30 people. That's great. So in that sense, Orpheus has really taken off, but there's a long way to go. Definitely, it will go a long way. We hope that. और यहाँ पे जो आपके दूसरे स्टार्टअप्स हैं, उसके बारे में कुछ मतलब शेयर करना चाहेंगे? मेरा दूसरा स्टार्टअप है यूसेन टेक्नोलॉजीज, जिसके थ्रू हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अगर देखा जाए तो मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ, बट अभी आज के डेट में आई एम मोर इनटू टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पर्सन। टेक्निकल सॉल्यूशंस हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं। मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में चला गया हूँ, लेकिन मेरा जो फैमिली बिजनेस है वो है तुम्हारा रियल एस्टेट, तो वो भी पैरेलली मेरा चल रहा है। सो ये तीनों चीजों को मैं बैलेंस कर रहा हूँ। जैसे यूसेन टेक्नोलॉजीज में अभी साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे कंपनीज हैं जिनके लिए हम लोग फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। दैट इज वन पार्ट। थर्डली हो गया नेक्स्ट एंड को, जिसके थ्रू हम लोग मेनली काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जो कि नॉर्थ ईस्ट में दो प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग अभी कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं। नॉट ओनली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अभी लोकलाइज पार्टनर के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर के हिसाब से भी हम लोग साइन ऑफ करने वाले हैं। लोकल जियोटेक्निकल सर्वेज, नॉर्मल सर्वेज हो गया, तुम्हारा लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, ये सब देने वाले हैं एकॉम को। That's great. बहुत ही अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारे शो का 10th एपिसोड है और इस शो का नाम है CKDKMK, सिविल के दुनिया के मजेदार किस्से। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में एज एम्प्लॉय और एज एन एम्प्लॉयर कोई ऐसा मजेदार किस्सा हो जो आप अपने हमारे व्यूअर्स को सुनना चाहेंगे? पहला दिन जब मैं साइट पे गया, मैं बता रहा हूँ, मैं जब नौकरी ज्वाइन किया कुवैत में, इट वाज अराउंड द मंथ ऑफ जून, और मिडिल ईस्ट में जून इट्स लाइक द पीक समर सीजन। तो पहला, और उस टाइम तुम्हारा जो साइट में काम चलता है वो है रात को 2 बजे से सुबह 11 बजे तक, और दिन में सब कुछ बंद। तो पहला दिन ओरिएंटेशन हुआ मेरा। ओरिएंटेशन होने के बाद मेरा साइट विजिट का प्लान हुआ सुबह 10 बजे। तो 10 से 11 वो 1 घंटा जो बचा हुआ है, तो उसमें मेरा साइट विजिट होगा। अब नया इंजीनियर, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो सबने बोला कि बाहर बहुत गर्मी होगा तो हाथ में ग्लव्स पहन के जाओ। अभी मुझे लगा कि ग्लव्स पहन के क्या होगा, बस थोड़ी तो गर्मी ही है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बाहर 55 डिग्री था। तो वो मेरे दिमाग से निकल गया। बाहर जाते ही जब साइड में मुझे टावर में चढ़ना था, इट वाज अराउंड 70 फीट ऊपर, बिना ग्लव्स का जब हाथ दिया पूरा हाथ जल गया मेरा।
पहले दिन ही सोचो, साइड में गया, फ्रेशर, हाथ जलने के बाद वापस आया मैं घर पे। लोकेशन कहाँ पे था वो? ये तुम्हारा मीना अल अमेदी है, कुवैत में अच्छा, ऑयल कुवैत। रिफाइनरी है, तो उसका एक्सपेंशन में मेरा पोस्टिंग था। ओके, तो उसके बाद फिर आपने प्रिकॉशन लेना स्टार्ट किया होगा? फिर प्रिकॉशन लेना चालू किया, क्योंकि उससे पहले तो मुझे वो टाइम मैं सीरियसली लिया नहीं था ये सेफ्टी ये सबको। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे। और जो आपने फॉरेन में जो वर्क किया है, जैसे इंडिया में भी आपने बहुत वर्क देखा होगा कंस्ट्रक्शन में, तो आपको क्या डिफरेंस लगा कि मतलब यहाँ के इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन होते हैं जनरली हाउसेस जो होते हैं, जो मतलब लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स बनाते हैं, और वहाँ के जो होते हैं, उसमें डिफरेंस कुछ आपको नोटिस किया, ऑब्जर्व किए उसमें? देखो, डिफरेंस ये है कि बाहर तुम्हारा हेल्थ सेफ्टी हैजर्ड्स को बहुत ज्यादा मायने दिया जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं। यहाँ पे तुमको क्या है कि शेड्यूल बस फॉलो करना है। बाहर ऐसा नहीं है। बाहर तुमको शेड्यूल फॉलो करने के साथ साथ भी तुमको सेफ्टी भी बहुत दिमाग में रखना की जरूरत है। हर एक चीज अगर तुम्हारा सेफ नहीं है तो उसके लिए तुम वो काम भूल जाओ। पहले तुम्हारा सेफ्टी चेकलिस्ट फुलफिल होगा, उसके बाद तुम काम चालू कर सकते हो, तो उसके लिए तुम पैरालाइज नहीं होगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1 दिन 2 दिन तुम्हारा डिले हो गया प्रोजेक्ट, तो तुम्हारा पैरालाइज शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो जाए या तो कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट हो गया, सब जगह ये सेम है। ओके, तो आपने ये बहुत ही मतलब अच्छा पॉइंट है कि मतलब लाइफ को वैल्यू दिया जाता है, जो कि यहाँ पे सैडली उतना शायद दिया नहीं जाता अभी, बस इकोनॉमिक गेन को देखा जाता। तो एग्जैक्टली, हाँ, कहीं ना कहीं शायद इम्प्रूव करेंगे हम लोग धीरे धीरे उस इसमें। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें इम्प्रूव हो रही है। हाँ हाँ, और आपके एक्सपीरियंस जो है मतलब सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में किस किस चीज में रहा? जैसे आप बोले थे मेट्रो में आपका एक्सपीरियंस था, दिल्ली मेट्रो में। दिल्ली मेट्रो मेरा एक्सपीरियंस है। दिल्ली मेट्रो में ज्यादा नहीं, बस 6 महीने का एक्सपीरियंस था। बस प्रोजेक्ट इनिशिएट करने का टाइम जो एक्सपीरियंस है अपना। फिर तुम्हारा ऑयल एंड गैस में मेरा एक्सपीरियंस है, और अभी तुम्हारा एक्सपीरियंस हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में। तो ये तीनों फील्ड में मेरा काम है। और अगर देखा जाए तो फैमिली बिजनेस तुम्हारा रियल एस्टेट में तो मॉल्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, हाई राइज बिल्डिंग्स हो गया। जैसे हम लोग अगर देखा जाए तो शाहपुर जी पालू जी का कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स है। फिर तुम्हारा वेस्ट बंगाल पीएलएस हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का भी हम लोग पार्टनर्स है। तो हम लोग हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं, मॉल्स बनाते हैं यहाँ पे। जैसे शाहपुर जी का तुम्हारा शुको ब्रिज जो प्रोजेक्ट है, वो एशिया का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है इन टर्म्स ऑफ तुम्हारा स्क्वायर फीट। उसमें हम लोग G+16 वाला बिल्डिंग्स भी किए हैं। उन लोगों का जो LIG MIG वाला पार्ट है, उसका मैक्सिमम परसेंटेज हम लोग किए, तो वो भी एक्सपीरियंस है अपना। अच्छा, तो काफी आपका एक्सपीरियंस रहा। तो सर मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे कि एक ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी आपके हाई फंड्स वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, जो कि आपने मेंशन किया, मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया कि उसका जो कंसल्टेंसी वर्क्स है, मतलब उसका जो ड्राइंग्स हैं, वो सब फॉरेन कंसल्टेंसी से आते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस फील्ड में कि जो ड्राइंग था, जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग या प्लान, कौन सी कंपनी कर रही थी? देखो, सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कुवैत वाले प्रोजेक्ट्स के साथ। तो हम लोग EPC थे, तो पूरा ड्राइंग डिजाइन पूरा हम लोगों को ही मिला था। हम लोग का कोडिंग ऑफिस से तुम्हारा ड्राइंग डिजाइन होके आता था। वो साइट के हिसाब से थोड़ा कुछ मॉडिफाई करके फिर इम्प्लीमेंट करते थे हम लोग। अगर देखा जाए तुम्हारा मेट्रो रेल वाला प्रोजेक्ट्स में, जो इंडिया वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जो PMCs है वो मैक्सिमम अपॉइंट होता है जो फंडिंग करते हैं प्रोजेक्ट, उनके थ्रू। तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे मेट्रो वाले प्रोजेक्ट्स फंडिंग करते हैं तुम्हारा जापानीज, बहुत सारे करते हैं मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो जो लोग तुम्हारा फंड मैनेजर्स होते हैं वही लोग नॉमिनेट करते हैं तुम्हारा PMCs को। जैसे अगर जापानीज कर रहा है तो कोई जापानीज कंपनी को दे दिया, या तो अगर तुम्हारा कोई ग्लोबल टेंडर हुआ तो ग्लोबल टेंडर में जो L1 आता है वही उसी को मिलता है। आज के डेट में तुम्हारा जैसे बहुत कोई PMC कंपनीज इंडिया में एंट्री कर चुके हैं, फॉरेन PMC कंपनीज। तो उस लोगों के साथ compete करने के लिए जो क्लॉजेस हैं, तो बहुत सारे क्लॉजेस लोकल कंपनीज के पास है नहीं। जैसे तुम्हारा कभी कभी वर्टिकल ड्रिलिंग का कुछ क्लॉज डाला जाता है टेंडर्स में, जो कि मैंडेटरी है प्रोजेक्ट के लिए। तो वैसा एक्सपीरियंस लोकल कंपनीज को रहता नहीं है हमेशा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे फॉरेन कंपनीज तुम्हारा प्रोजेक्ट भागे लेके जा रही है। ये कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये बहुत
हाई एंड प्रोजेक्ट्स में होता है। मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में ऐसा कुछ होता नहीं है कि लोकल कंपनीज को काम नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोकल कंपनीज जैसे स्तूप हो गया, फिर तुम्हारा और एक कंपनी है जो इंडिया में बहुत अभी ईस्टर्न इंडिया में काम कर रही है, लूथरा समथिंग। बहुत ही अभी छोटा कंपनी है, लेकिन बहुत सारे लोकल प्रोजेक्ट्स उन लोग को मिल रहा है। मतलब अभी स्टार्ट हुआ है, इमर्जिंग है, तो हो सकता है फ्यूचर में और बेटर हो। इमर्जिंग मार्केट है उस चीज में। यस, इंडिया में बहुत स्कोप है, क्योंकि बहुत सारे एक्स एम्प्लॉइज है वो फॉरेन कंपनीज का जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा क्योंकि जैसे कि आप स्टार्टअप को मेंशन किए, तो बहुत सारे लोग इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स हैं, कोई आपका एमटेक करके या कुछ पढ़ाई करके वो लोग कंसल्टेंसी स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जगह पे, क्योंकि उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है, तो वो बिजनेस बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो उनको भी डिफिकल्टीज फेस हो रहा है। मतलब आपका नॉर्मल प्रोजेक्ट्स तो हो सकता है मतलब उठा लेते हैं, बट आपका जो हाई एंड प्रोजेक्ट्स हैं या जिस प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस चाहिए, तो उस प्रोजेक्ट को वो लोग मतलब अपने अंडर ले नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे पूछा। तो ये भी काफी अगर ये चीज को तुम दोनों तरफ से देख सकते हो। एक हो गया कि बड़े कंपनीज एक साथ ज्यादा प्रोजेक्ट्स लेने से डर रहा है क्योंकि उसके पास मैन पावर है नहीं। तो छोटे कंपनीज जो अभी फॉर्म हो रहा है ना, अगर उनको बड़ा कुछ काम करना है तो उन लोगों को क्या करना है कि बड़े कंपनी को फ्रंट एंड में देना है और उनका नाम यूज करके प्रोजेक्ट उनसे आउटसोर्स में लेना है। तो क्या होगा, थोड़ा प्रॉफिट परसेंटेज कम होगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप होता है, आपका पोर्टफोलियो बनता है। तो ये अभी नया बिजनेस मॉडल है जो चालू हुआ है। बहुत ही अच्छा आइडिया था आपका ये, मतलब काफी बहुत काम आएगा। और नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये एक टिप है कि जो बडिंग स्टार्टअप है, मतलब उसी से रिलेटेड है, जो भी हमारे बडिंग स्टार्टअप कंपनीज हैं जो अभी सोच रहे हैं कि स्टार्टअप करना है या पहले से सोच रहे थे कि आफ्टर बीटेक या आफ्टर पढ़ाई खत्म होने के बाद हमको स्टार्टअप में जाना है, स्टार्टअप कंपनी खोलना है, तो उनके लिए आपको क्या एडवाइस मतलब आप देना चाहेंगे? कि क्योंकि चैलेंजेस तो हैं बहुत सारे और आपने फेस किए हैं, तो आप बता सकते हैं बेटर उन लोगों को। देखो, चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। स्टार्टअप एक बार फॉर्म हो भी गया तो उसके बाद भी तुमको डेली बेसिस में चैलेंजेस फेस करना होता है। वो तुम किसी के लिए काम करो या खुद का बिजनेस चालू करो। तो अगर तुमको लगता है कि तुमको स्टार्टअप करना है तो पहले दिन से चालू हो जाओ। लेकिन अगर तुमको लगता है कि कुछ एक्सपीरियंस गैदर कर ले उसके बाद तुमको स्टार्टअप करना है तो वो भी तुम कर सकते हो। दैट इज, अगर वो करोगे तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तुमको पूरा प्रोसेस समझ में आता है कि कैसे बिजनेस एक्वायर होता है। बहुत सारे और एक पॉइंट में इधर रेस करूंगा कि अगर हम लोग अपना कोर्स करिकुलम देखते हैं बीटेक का, तो इसमें कोई फाइनेंशियल पेपर्स हम लोग का रहता नहीं है, फाइनेंशियल नॉलेज हम लोग को मिलता नहीं है कि बैलेंस शीट कैसे हम लोग रीड कर सकते हैं, कैसे हम लोग तुम्हारा फंड रेज कर सकते हैं। ये सब नॉलेज हम लोग को रहता नहीं है क्योंकि ये हम लोग के कोर्स में है नहीं। और अगर उस तरह से देखा जाए तो बीटेक में कुछ खास बाद में तुमको टाइम भी नहीं मिलेगा कि ये सब तुम पढ़ाई करो अपने से, अगर तुम्हारे कोर्स के बाहर जाके कुछ ये सब पढ़ाई करना है। तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स का भी थोड़ा नॉलेज हो जिससे तुमको फाइनेंशियल वर्ल्ड कैसे काम करता है, कैसे तुम्हारा बैंक लोन सैंक्शन करते हैं, कैसे तुम फंड रेज कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, कैसे तुम एक मार्केटिंग कर सकते हो अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट्स का, ये तुम जान लो, इसका कुछ एक्सपीरियंस ले लो, फिर अपना स्टार्टअप। डेफिनेटली बहुत सही चीज आपने कहा कि पैसा कमाना कोई सिखाता नहीं है, तो उसके लिए पहले से हमको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। देखो, अगर तुम देखोगे किसी को अगर स्टार्टअप प्लान, अगर कोई किसी को तुम बोलो बिजनेस प्लान मुझे दे दो, तो वो 2 दिन के अंदर तुमको बिजनेस प्लान दे देगा, लेकिन वो बिजनेस प्लान सस्टेनेबल है कि नहीं वो तुमको बता नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास अभी प्रायर एक्सपीरियंस है नहीं। वो तुमको अनरियलिस्टिक फिगर्स देके समझाएगा कि हाँ मैं 1 साल में इतना रेवेन्यू कर पाऊंगा, 2 साल में इतना रेवेन्यू कर पाऊंगा, या 5 साल में इतना रेवेन्यू मेरा कंपनी का होगा, लेकिन एक्चुअली क्या वो फिगर्स जस्टिफाइबल है, फिनांस तुम्हारा प्रैक्टिकली वो अचीवेबल है, या तुम जो मैन पावर कॉस्ट देख रहे हो, जो तुम ऑपरेशंस कॉस्ट देख रहे हो, वो कितना दूर प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो उन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये क्या है ना, 2-3 साल अगर तुम काम कर लेते हो कहीं, तो तुमको कुछ थोड़ा नॉलेज बन जाता है इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली बहुत अच्छा पॉइंट कहा आपने। तो उससे रिलेटेड मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा
कि जैसे कि आप आपके लाइफ में आपने बोला है कि पहले स्टार्टिंग से ही आपको मतलब फिक्स था कि यू वांटेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। उसके बाद आपने बीटेक में एक बार बोला कि एक बार मुझे रिग्रेट हुआ था कि मेरा जो पॉइंटर है थोड़ा कम है, बट बाद में आपको पता चला कि इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो उसके बाद Yes. आपने एक्सपीरियंस लिया, एक्सपीरियंस लेके अपना एंटरप्रेन्योर का जो जर्नी है वो स्टार्ट किया। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे फोर्थ ईयर के सिविल इंजीनियर्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं जो ऐसे ही पीयर प्रेशर में आ जाते हैं कि नहीं मुझे भी हो सकता है कोई मतलब पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हो तो वो प्रेशर में आ जाता है, मेरा तो पॉइंटर अच्छा नहीं है, मैं क्या करूंगा फ्यूचर, मेरा कुछ नहीं हो सकता। लोग बोल भी देते हैं फ्रेंड सर्कल में कुछ कुछ। तो उन सब के लिए आपका क्या एडवाइस है? देखो, सीजीपीए सब कुछ होता नहीं है। अगर सीजीपीए सब कुछ होता तो मैं जो अब जिस पोजीशन में भी हूँ, मैं उस पोजीशन में कभी आ नहीं पाता। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अगर देखा जाए तो मैं 6.5 पॉइंटर से 7.14 में पहुंचा हूँ। सो अगर देखा जाए कॉलेज में ये कुछ खास पॉइंटर्स है नहीं। मेरे से ज्यादा आई गेस 70% ज्यादा क्लास अब मेरे से आगे होंगे। लेकिन तुमको प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तुम क्या सीख रहे हो, एक तो हो गया कि तुम पढ़ाई करने के लिए बस पढ़ाई कर रहे हो, एक हो गया कि तुम जानने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, कि तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर कर रहे हो। तो वो करना चाहिए हमेशा कि तुम बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपना क्लियर रखो, लेकिन बाकी जो भी है वो सब भी सीखने की कोशिश करो। बस तुम मगअप करके एग्जाम में लिख दिए, अच्छा मार्क्स लेके आए, वो फाइनल एंड नहीं है। हाँ, वो उन लोगों के लिए है जो तुम्हारा गेट में जाना, गेट देके जिनको एमटेक करना है, जिनको टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, उनके लिए वो बहुत सही लाइन है। वो उन लोगों को करना ही चाहिए, क्योंकि ज्यादा पॉइंटर लाके मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगा, उन लोगों के लिए सही है, क्योंकि उन लोगों को वो जरूरत भी है। लेकिन हम लोग जैसे स्टूडेंट जो है, जो तुम्हारा अगर देखा जाए कि उतना खास पढ़ाई में है नहीं, जिनको ज्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है पढ़ाई में, लेकिन लाइफ में कुछ करना है, तो उन लोगों के लिए मेरा एक ही सजेशन होगा कि जो भी करो थोड़ा सीरियसली कर लो। जितना तो तुमको समझ में आए उतना ही वो समझ लो सही से, वही काफी है। और हमेशा अपने जो स्किल सेट है उसमें एड ऑन्स करते रहो बस। बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया सर आपने। एक्चुअली एक होता है कि लोग किसी को एडवाइस देते हैं और एक एडवाइस देने वाला होता है जो खुद करके रखा है, उसके बाद वो एडवाइस देता है, तो उसका जो एडवाइस होता है वो कभी रॉन्ग हो नहीं सकता। तो हमारे व्यूअर्स को भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर व्यूअर्स आई वांट टू थैंक यू अगेन फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू एवरीबॉडी। और आई गेस हम लोग का जो व्यूअर्स है वो मैक्सिमम तुम्हारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और जस्ट पास आउट जो हो रहे हैं वो लोग होंगे। तो फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए तो अभी तो बहुत टाइम है, मस्ती मारो कॉलेज में, बहुत टाइम मिलेगा तुमको काम करने के लिए, काम सीखने के लिए। थर्ड ईयर वाले थोड़ा, अभी तो उन लोगों का प्लेसमेंट सीजन चालू हो रहा है, तो थोड़ा देख के, और अभी जो कोविड-19 सिचुएशन है उसके लिए थोड़ा सा मार्केट इम्पैक्ट हो रहा है, तो टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। ये हमेशा कुछ ना कुछ होता है। 2008-9 वाले बैच के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था। हम लोग मेरा जब शाहपुर जिम में इंटर्नशिप हुआ था, तो 2010 पास आउट एक स्टूडेंट था जिनका अंडर ही मेरा इंटर्नशिप था, किड वाले। तो उनसे मुझे पता चला था कि उनका जो सीनियर है, जो 2008 वो रिसेशन के टाइम जो पास आउट हुए थे, पहले करियर के शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम फेस किए थे, लेकिन बाद में अगर देखा जाए वो लोग सबसे आगे गए, क्योंकि वो करियर का पहले 1-2 साल में स्ट्रगल ज्यादा करते हैं ना, उन लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस गैदर होता है, उन लोगों को सही से पता चलता है कि कैसे क्या वो डॉट्स कनेक्ट कर पाते हैं सही से। तो ये बहुत लाइफ में जरूरी है कि तुम स्ट्रगल करके सीख लो एक बार, वही काफी है। 1-2 साल स्ट्रगल कर लोगे, उसके बाद जिंदगी आराम की है। क्या बात कही आपने, मतलब गोल्डन वर्ड्स। सो इसी के साथ हम लोग अपना शो आज एंड करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सर, बाय। थैंक यू, ओके बाय।